जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Good evening, Anand, and good evening to my fellow panelists. This is exactly what I feared, and all the fears have come true. Because the BJP and the central government have fallen neatly and completely into this trap. Now they are having to beseech, plead, explain, convince that no mosque will be touched. This Amendment Act bill is not against Muslims. That was never the issue. The problem is that this draconian act and the amendment was against the non-Muslims. But they've been beaten into a corner and now they're having to explain that this is not anti-Muslim. Problem is it was anti-non-Muslim. Be that as it may. I have spoken ad nauseum, Anand, with you about the Waqf Act, about the amendment bill, about the continued draconian nature of it. So many clauses remain, about the need for giving Hindus a similar act in the interest of equality, about the fact that I have nothing against the Waqf board. Why should anyone? Because countless boards, charities, NGOs exist. The problem was the Waqf Act. Because the world over, disputes over property are settled using courts and existing laws that are community and religion agnostic. So why should a particular religious community be armed with another set of laws that are patently discriminatory towards member of another community as a primary instrument of defense or indeed offense? But there is no point repeating all this. Today is a day of reflection. I'll tell you why. It is a day where we have witnessed so many of our leaders continue to fight to preserve an act that is discriminatory against 1 billion Hindus. And many of them insist on calling themselves proud Hindu. Well, it is not for me to dole out certificates, Anand, but one must ask, would a proud Hindu ever want discrimination against fellow Hindus to continue? Then why does it? Why are we in an India where 500,000 Hindus are forced to be refugees in their own land? Where Hindu temples are exclusively controlled by the state? Where Right to Education Act discriminates only against Hindus? Where those who perpetrated Hindu genocides are celebrated? Where the constitution enacts court bills to reform only Hinduism? Where a law was about to be enacted where only the Hindus would have been held guilty in a communal riot? Where an act continues to deny Hindus their legitimate right to reclaim thousands of demolished temples? And do we not even realize that what we cherish most in this land, pluralism, can only survive if India does, and India can only survive if Hinduism does. Let me explain. Every politician, Anand, is elected on the promise of delivering welfare. And Modi has, over the last 11 years, delivered stunningly on welfare. Toilets have been made 120 million, gas connections supplied 100 million, health cards distributed 350 million, microloans provided 430 million, homes constructed 40 million, jobs given 85 million, bank accounts opened. Indians are healthier, wealthier, wiser, they're traveling faster, cheaper, they're living safer, longer, being defended better. Inequality has decreased, stock market has the highest ever. But there comes the tipping point, and sooner or later that point is reached, Anand, first by those who elect and not by those who are elected. There is only so many toilets to be made, so many taps to be connected, so many bank accounts to be opened, and once they are, the voters need something more than the basic amenities. That time has come. The time has come for Modi to stop discrimination against 1 billion Hindus. Discrimination that is legal, social, educational and constitutional. To address this issue later would be too late. Quite possibly it already is. Just 30 seconds. The Hindus, Anand, do not ask for appeasement. They never have. The Hindus do not even mind if people belonging to other religions are appeased. All the Hindus ask for is that discrimination carried out against them be ebbed, if not stopped altogether. Is that too much to ask? The proverbial Hindu Rashtra, a rhetorical derisory reference to the dawn of 2014 coined by the left to guilt trip Indians into believing that they were now living in a fascist state where Muslim rights were being stomped upon by brown-shirted goose-stepping Hindutva soldiers, is soon going to celebrate its 11th anniversary. 11 years, Anand, of apathy, of inaction, of prejudice, of constitutional and judicial discrimination. Not against Muslims, but against Hindus. Do something. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और अपना राय ज़रूर बताइए, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो फिर आनंद रंगनाथन, जैसे आप लोगों को पता है, ये बात कर इस वीडियो में वक्फ बोर्ड का बिल राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया। और आनंद रंगनाथन का एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि इस बिल को
पास करना अमेंड करके एक सही उपाय नहीं है, क्योंकि ये बिल ही इंडिया को एक डी फैक्टो इस्लामिक राष्ट्र बनाता है। क्योंकि ये जो लॉ है इसमें बस ये सेक्शन 40 नहीं एक ड्रैकोनियन सेक्शन है। इसमें पूरा का पूरा लॉ ही ड्रैकोनियन है, एंटी सेकुलर है, एंटी हिंदू है, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी बुद्धिस्ट है, एंटी जैन है, सब कुछ इसका एंटी हिंदू है, एंटी माइनॉरिटी है, एंटी मेजॉरिटी है, एंटी रिलीजन है, हिंदू रिलीजन हमारा जो धार्मिक रिलीजन है, और क्रिश्चियनिटी भी। पर मैं एग्री तो करता हूँ, पर ये भी एक सच्चाई है कि आनंद रघुनाथन का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत ही ब्लैक एंड वाइट है। इन्होंने बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में जाके भी बोले हैं ये व्यूज़ कि मैं ब्लैक एंड वाइट देखता हूँ दुनिया को। और अभी बीजेपी के पास अकेले दम पे 303 सीट्स नहीं है, बस 240 सीट है। और इनके जो सहयोगी दल है पीडीपी और जेडीयू, वो बीजेपी के साथ इतना ही चल सकता है इन लॉज के ऊपर। इससे ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो फिर वो मानेगा नहीं, और बीजेपी को बहुत टाइम मुश्किल लगा था इसको करने में भी, क्योंकि 2 बार ये जीपीसी में फंसा हुआ था। उधर ये कोशिश कर रहे थे 2 पार्टीज़, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को ये जो पीडीपी और जेडीयू है ये अभी भी एक फॉल्स सेक्युलरिज्म के ट्रैप में फंसे हुए हैं। इनको ये नहीं लगता कि बीजेपी के साथ अब आ गए तो फिर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इनको वोट करने वाला ही नहीं है, नेग्लिजिबल वोट पड़ेगा इनका मुस्लिम वोट। अदरवाइज़ जो भी मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के साथ मिलते ही इनका ख़त्म हो गया। बिहार में तो ख़त्म हो गया था, और इनके एक एमपी जो बने थे 24 इलेक्शन में, उन्होंने ये बोला भी था ये मेरे को आपको वोट नहीं चाहिए, मेरे को पता चल गया मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, आपने मेरे लिए वोट नहीं किया था। और उन्होंने बोला था कि अब हमें पता है कि हमको किसने वोट किया है, और अभी जेडीयू को ये पता होना चाहिए कि ये वोट नहीं होने वाला है इनको, और इनको ये फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म से बाहर निकलना चाहिए। और ऐसे वक्फ बोर्ड जैसे एक्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और बीजेपी को नेक्स्ट इलेक्शन में और भी ध्यान देना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जब इनके पास बहुमत आए, खुद बहुमत आए, ये पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, तो फिर जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, ये जो एक्ट है इसको पूरी तरह, इसका जो भी ड्रैकोनियन बिंदु हैं उन बिंदुओं को पूरी तरह नलीफाई कर देना चाहिए इसको, या इस एक्ट को ही डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज़ करना चाहिए जब बीजेपी के पास खुद के दम पे पूरा पावर आ जाए, और वो करते ही हिंदू वोट और भी बढ़ेगा इनका। अच्छा काम किया है वैसे, अभी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये वक्फ बोर्ड हमारे बहुत सारे मंदिरों को और हमारे हिंदू लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को अपना बना दे देता, वक्फ बाई यूज़र करके, उनका जो 40 सेक्शन है उसको यूज़ करके बस 2-3 बार एक घर में जाके नमाज़ पढ़ लिया एक वक्फ बोर्ड के बंदे ने, और वो घर बोल लिया कि ये मेरा वक्फ एरिया है क्योंकि मैंने इधर नमाज़ पढ़ लिया था। और उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, एक 50 प्रिंट सर्कुलेशन न्यूज़पेपर जो उर्दू में प्रिंट होता है, और उसके कारण जो जिसको पीड़ित बंदा है उसको पता भी नहीं चला, और एक दिन वो अपना प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि इसको नोटिफाई कर दिया है वक्फ ने अपने नाम पे, क्योंकि उनके बंदे ने नमाज़ पढ़ लिया था उधर। तो फिर ऐसा फ्रॉडिया काम इन लोगों ने किया है ये समुदाय ने, और अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि बड़ा सा आंदोलन करेंगे शाहीन बाग टाइप। अभी तक तो कुछ ऐसा आसार दिखाई नहीं दे रहा है इनका, ये जो ब्रावाडो है वो ब्रावाडो आगे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अचानक से आ सकते हैं लोग, तो फिर इंटेलिजेंस यूनिट्स को, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स को, पुलिस को
पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दंगा वंगा हो सकता है। और यूपी में तो नहीं होने वाला, और भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कोशिश करना चाहिए कि पूरी तरह सही समाधान रखना चाहिए। और जो दूसरे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उधर तो होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये उधर कुछ होने नहीं देंगे। उनको लगता है कि जो भी होगा बीजेपी रूल्ड स्टेट में होगा तो फिर हमको अच्छा लगेगा। और इस टाइम दिल्ली में कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो हमारे अगेंस्ट है, हिंदुओं के अगेंस्ट। बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, तो फिर उधर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस टाइम। और आगे देखते हैं क्या होता है। और भी बहुत सारे लॉज लेके आना चाहिए, जो एंटी कम्युनिज्म लॉ है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको भी बाहर फेंक देना चाहिए। तो उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव, जय हिंद, जय एकलिंग जी। टेक केयर दोस्तों।